ابھی آواز کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ سارجنٹ ڈاؤ راہداری کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے عقب میں مسز گرانٹ اور نئی نرسوں میں سے ایک نرس ڈورس بھی تھی۔ چند دمے بعد مکان کے دوسرے حصوں سے کئی اور ملازم بھی آن موجود ہوئے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور بعض افراد کے تو ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ ذرا انہیں سنبھالیے، میں نے مس ٹریلانی کو مسز گرانٹ کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ سارجنٹ ڈاؤ نے اس اثنا میں کمرے کی بتیاں جلا دی تھیں۔ جب ہم سب افراد کمرے میں داخل ہوئے تو ایک ایسا لرزہ خیز منظر دکھائی دیا جس نے کم از کم میرے تو اوسان خطا کر دیے۔ نئی نرس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ مسٹر ٹریلانی اسی آہنی تجوری کے قریب پڑے ہوئے تھے اور ان کا دایاں ہاتھ تجوری کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ زخم کی تمام پٹیاں بری طرح نوچ ڈالی گئی تھیں اور خون، تازہ خون، یوں ابل رہا تھا جیسے پتھروں میں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ خدا کی پناہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سارجنٹ نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نرس ڈورس نے اپنے فرائض کا فوراً احساس کیا۔ نوکروں کی مدد سے مسٹر ٹریلانی کو اٹھوا کر دوبارہ پلنگ پر لٹا دیا اور جلدی جلدی ان کے زخموں کو صاف کر کے نئی پٹیاں باندھنے لگی۔ چند لمحوں بعد خون آپ ہی آپ رک گیا۔ سارجنٹ ڈاؤ کمرے میں گھوم پھر کر جائزہ لے رہا تھا۔ ہر شے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور وہاں کوئی کشمکش یا ہاتھا پائی کے کوئی نشانات نہ تھے۔ بخدا میں پاگل ہو جاؤں گا، سارجنٹ بڑبڑایا۔ یہ کسی انسان کی حرکت نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے۔ سب لوگ خوف اور تعجب کی نظروں سے سارجنٹ کو تکنے لگے جو اس وقت کسی اور عالم میں تھا۔ ابھی میں اس کی بات کا جواب نہ دینے پایا تھا کہ مارگریٹ ٹریلانی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید تھا، آنکھیں ویران اور وحشت زدہ، ہونٹ خشک اور تھرتھراتے ہوئے وہ آتے ہی دھم سے ایک کرسی پر گر پڑی اور ہانپتے ہوئے کہنے لگی، خدا ہم پر رحم کرے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے۔ میری ہڈیاں اس بوجھ تلے دب کر چٹک رہی تھی اور اگر مسٹر میلکم راس ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتے اور مجھے کمرے سے باہر نہ لے جاتے تو میں زندہ نہ بچتی۔ مگر یہ آپ کی کلائی بھی تو زخمی ہے، اس میں سے خون بہ رہا ہے، فوراً ڈاکٹر وینچسٹر کو بلاؤ۔ اس طویل وقفے میں اپنی کلائی کا زخم فراموش کر چکا تھا اور احساس ہی نہ تھا کہ اس میں سے ابھی تک خون کے قطرے رس رہے ہیں۔ سارجنٹ ڈاؤ لپک کر میرے پاس آیا اور کلائی پکڑ کر غور سے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی زخم ہے جو مسٹر ٹریلانی کی کلائی پر دیکھا گیا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ شاید، میں نے جواب دیا، مگر یہ سب مہربانی مس ٹریلانی کی پالتو بلی کی ہے۔ اسی نے تھوڑی دیر پہلے اپنا پنجہ میری کلائی میں گاڑ دیا تھا، مگر وہ تو میرے کمرے میں تھی، یہاں کیسے اور کب آئی؟ مارگریٹ نے کہا۔ مسز گرانٹ نے اس موقع پر مداخلت کی اور کہا، نرس ڈورس کہتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بلی نرس کینیڈی کے بستر پر پڑی تھی، یکایک اٹھ کر اس کمرے میں آئی اور جب سارجنٹ نے احوال پوچھنے کے لیے باہر سے دروازہ کھولا تو یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کمرے میں گھس گئی۔ ادھر نرس کینیڈی کی حالت پھر ابتر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر وینچسٹر اپنا بیگ لیے کمرے میں آیا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور بال منتشر تھے۔ اس نے گھومتی ہوئی نظر کمرے میں ڈالی، حالات کو فوراً بھانپ لیا۔ سب سے پہلے اس نے مسٹر ٹریلانی کے زخموں کا معائنہ کیا اور دوبارہ زخم دھو کر دوائی لگائی، پھر اپنے ہاتھ سے پٹیاں باندھی۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور کچھ کہے بغیر میرا زخم بھی صاف کیا، مرہم لگایا، پٹی باندھ دی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولنی چاہی لیکن ڈاکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور کہا، پہلے نرس کینیڈی کو دیکھ لوں، اس کے بعد اطمینان سے بات ہوگی۔ ڈاکٹر دوسرے کمرے میں چلا گیا، میں اس کے ساتھ تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بے گناہ نوجوان نرس کس عذاب میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ وہ برسوں کی بیمار نظر آتی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور ان کی چمک دمک بالکل غائب۔ رخساروں کی ہڈیاں گال پچک جانے سے ابھر آئی تھی، ہونٹ سفید، گردن کی ایک ایک رگ ابھری ہوئی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ 2 دن پیشتر ہی نرس حسن اور صحت کا ایک مثالی نمونہ تھی۔ وینچسٹر نے اس کی نبض دیکھی، دل کے دھڑکنے کی رفتار کا اندازہ لگایا، پھر سرنج میں کوئی سریع الاثر ٹیکا بھر کر نرس کے بازو میں لگا دیا۔ اس کے بعد نرس ڈورس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، میں نے اسے نشے کا ایک ٹیکا لگا دیا ہے، اس کے اعصاب منتشر ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت اس کی موت واقع ہو سکتی ہے کیونکہ دماغ بھی اس صدمے سے متاثر ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ 3-4 گھنٹے تک اس ٹیکے کے اثر رہے گی، شاید اس طرح اس کے اعصاب کو کچھ سکون مل جائے۔ تم حتی الامکان یہاں ٹھہرو، اگر اس کے بدن میں کوئی خفیف سی حرکت بھی پیدا ہو تو فوراً مجھے آگاہ کر دینا، بہت بہتر۔ میں آپ کی ان ہدایات پر عمل کروں گی۔ شاید آپ کے علم میں نہیں کہ نرس کینیڈی میری خالہ زاد بہن بھی ہے اور ہم دونوں میں بڑی محبت ہے۔ اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، ہاں صاحب، اب میں فارغ ہوں، ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے ممکنہ حد تک تفصیلات بیان کی۔ ڈاکٹر کان لگائے پوری توجہ سے سنتا رہا، پھر بولا، معاملہ روز بروز پراسرار بنتا جا رہا ہے۔ بھلا سائنس کے اس عظیم دور میں کوئی شخص ان واقعات کی صحت پر کیسے یقین کرے؟ اچھا خیر، آئیے منہ ہاتھ دھوئیے، پھر ناشتے کے بعد کچھ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ غم و اندوہ سے بھری ہوئی فضا میں ناشتہ کیا گیا۔ اس دوران میں کسی شخص نے کوئی بات نہ کہی، بلکہ سبھی اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر وینچسٹر مجھے
और मिस ट्रेलानी को एक कमरे में ले गया। आरामदेह सोफों पर बैठकर उसने लंबी तमहीद बांधे बगैर बराह रास्त मामले पर गुफ्तगू का आगाज कर दिया। मिस ट्रेलानी, आप देख रही हैं कि सूरत हाल रोज बरोज संगीन और खतरनाक होती जा रही है। मेरी राय यह है कि इन हालात में किसी माहिर से मशवरा तलब किया जाए। मुझे खुशी है डॉक्टर कि आपने आखिरकार इसकी जरूरत महसूस कर ली, मार्गरेट ने फौरन जवाब दिया। अब माहिर को तलाश करना आपका काम है। आपके जहन में कोई नाम तो होगा? हाँ, मेरे जहन में एक शख्स का नाम तो है, मगर पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे जहन में भी किसी का नाम आता है? कोई ऐसा फर्द जिसे तुम्हारे वालिद भी जानते हो या वो तुम्हारे वालिद को जानता हो? क्या कभी तुम्हारे वालिद ने किसी शख्स को इस मकान में बुलाया और उससे कभी किसी मामले पर बात की? जी नहीं, ऐसी कोई बात कम अज कम मेरे सामने तो नहीं हुई और ना किसी माहिर का नाम मेरे जहन में है। आपको मालूम है कि लंदन में तकरीबन मैं अजनबी हूँ। गिनती के चंद अफराद से मेरा मिलना जुलना है और मिस्टर मेलकम रॉस भी इन्हीं अफराद में शामिल है। बहरहाल आप खुद बताइए कि वो शख्स कौन है जो ऐसे नाजुक मामलात में हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है। डॉक्टर वेंचेस्टर ने सिगरेट के 2-3 कश लगाए, राख झाड़ी और कहने लगा, दुनिया में हर फन के जानने वाले बहुत से अफराद मौजूद हैं। चीन में, जापान में, फ्रांस में, हिंदुस्तान में, मिस्र में और खुद हमारे मुल्क इंग्लिस्तान में। मगर सवाल तो यह है कि हमें किस किस्म का माहिर चाहिए? कोई आला दर्जे का सर्जन या माहिर रूहानियत या काले इल्म का उस्ताद? आपके वालिद का केस एक अजूबा है। उनके रूहानी और जिस्मानी इलाज की जरूरत है। लंदन में सर जेम्स ही ऐसे आदमी हैं जो इन दोनों उलूम व फनून में कामिल समझे जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। आपको इस सिलसिले में मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मार्गरेट ने कहा। आप पर मुझे पूरा एतमाद है। सर जेम्स को जितनी जल्दी मुमकिन हो बुला लीजिए। बहुत बेहतर, मैं आज ही उनके पास जाता हूँ, वेंचेस्टर ने कहा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, आपके जख्म भी गहरे हैं, लाइए दोबारा इन्हें धोकर पट्टी बांध दो। ऐसे गहरे भी नहीं, मैंने हंसकर कहा, मामूली खराशे हैं। आप इन्हें खराशे कहते हैं? वेंचेस्टर ने हैरत से कहा, किसी भी जानवर के नाखून की खराश इंसानी जिल्द के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकती है। इन नाखूनों में जहर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे बदन में सरायत कर जाता है और फिर यही जख्म नासूर बन जाते हैं जिनका कोई इलाज मुमकिन नहीं। नतीजा ये कि बाज हालतों में पूरे को पूरे हाथ और पैर काट दिए जाते हैं। मैं खौफ से लरस गया और मैंने उसी वक्त दोबारा ड्रेसिंग पर आमादगी जाहिर कर दी। वेंचेस्टर ने मेरी कलाई से पट्टियां खोली और मुहद्दिब शीशे के जरिए इन खराशों का मुआयना करने लगा। उसकी आंखों में हैरत और खौफ के आसार थे। खुदा की पनाह, ये बिल्कुल वैसी ही खराशें हैं जैसे मिस्टर ट्रेलानी की कोहनी पर आई थी। इसका मतलब यह है कि मार्गरेट की पालतू बिल्ली ही इन वहशियाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। मिस ट्रेलानी, आपको अपने इस पालतू दरिंदे की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। बेहतर यह है कि उसे चंद रोज के लिए कहीं और भिजवा दें। मैं आज ही इसे मकान से निकलवा देती हूँ, मिस ट्रेलानी ने कहा। अब तो मुझे भी इससे खौफ आने लगा है। समझ में नहीं आता है कि उसे हो क्या गया है। दरअसल हैवानात में आमतौर पर ऐसी अजीब सलाहियतें पाई जाती हैं जो इंसानों में नहीं होती, डॉक्टर ने कहा। और मैंने बिल्लियों के बारे में तो सुना है कि इनमें अजीब व गरीब हिस्सियात होती हैं। बहरहाल आप अपनी बिल्ली से खौफ न खाएं। फिलहाल चंद रोज के लिए उसे अपने से अलग कर दें। दोपहर 11 बजे डॉक्टर वेंचेस्टर सर जेम्स के साथ वापस आया। पहली नजर में ही मुझे एहसास हो गया कि वो गैर मामूली शख्सियत का हामिल है। भारी कद, भारी जिस्म, भरा भरा पुररौब चेहरा, घनी मूछें, फराख पेशानी, मजबूत और चौड़ी थोड़ी, इंतहाई चमकदार आंखें। ऐसा खूबसूरत और वजीह आदमी बहुत कम देखने में आता है और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मुझे उसकी शख्सियत पर रश्क आने लगा। उसने आते ही गहरी निगाहों से हर शय का जायजा लिया और तारुफ के फौरन बाद यूं घुल मिल गया जैसे बरसों का शनासाई हो। और ये उसकी शख्सियत का गहरा असर था कि खौफो हिरास की वो असाब शिकन फजा जिसने गुज़िश्ता कई रातों से हमें जकड़ रखा था, अब काफूर हो चुकी थी। एक अजीब किस्म के इत्मीनान का एहसास मुझे हो रहा था कि सर जेम्स की आमद के बाद गोया परेशानियां खत्म हो गई हैं। वो सबसे पहले डॉक्टर वेंचेस्टर की मैयत में मिस्टर ट्रेलानी के कमरे में गया और वहां देर तक बैठा रहा। इस दौरान में उसने क्या देखा और क्या कुछ किया, मैं इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि हम लोगों को कमरे में आने की इजाजत न थी। अलबत्ता एक मर्तबा उसने नई नर्स डोरस को कमरे में तलब किया मगर चंद लम्हों बाद वापस भेज दिया। उसके बाद वो दोनों यानी सर जेम्स और डॉक्टर वेंचेस्टर नर्स कैनेडी के कमरे में गए और यहाँ भी जाते ही सर जेम्स ने उस नर्स को बाहर भेज दिया जो मिस कैनेडी की देखभाल पर मुकर्रर थी। मुझे बाद में डॉक्टर वेंचेस्टर ने बताया कि सर जेम्स ने तो कमाल ही कर दिया। वो गालिबन हिप्नोटिज्म का माहिर था। उसने नर्स कैनेडी को इस हद तक ठीक कर दिया कि वो न सिर्फ अपने जिस्म को आसानी से हरकत देने लगी बल्कि उसकी बंद जबान भी खुल गई। उसने सर जेम्स के तमाम सवालात का ठीक ठीक जवाब दिया। नर्स कैनेडी के कमरे से निकलकर वो दोनों लाइब्रेरी में गए और देर तक आपस में बहस मुबाहिसा करते रहे। उनकी आवाजें अगरचे बाहर तक आ रही थी, ताहम उनका मफहूम हम में से किसी के पल्ले न पड़ सका। मिस ट्रेलानी मेरे करीब ही बैठी थी। उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। वो बेचैनी से बार बार कुर्सी पर पहलू बदलती, मगर क्या मजाल जो जबान से एक लफ्ज भी निकला हो। दरअसल वो अपने बेहोश वालिद के बारे में जल्द से जल्द ये मालूम करने की ख्वाहिशमंद थी कि वो कब तक ठीक हो जाएंगे।
आखिरकार इंतजार की कठिन घड़ियां खत्म हो गईं और वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। सर जेम्स का चेहरा हर किस्म के तासुरात से अक्सर खाली था, अलबत्ता उनके होंठ सख्ती से बिछे हुए थे। उसके बरक्स डॉक्टर विंचेस्टर का चेहरा जर्द था और मुझे ये एहसास हुआ कि चंद लम्हे पहले ये चेहरा जरूर सुर्ख रहा होगा। सर जेम्स ने मुझे और मिस ट्रेलानी को इशारे से करीब बुलाया और कहा, माफ फरमाइए, आपको खामखा इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी पड़ी। दरअसल मामला कुछ ऐसा पेचीदा और उलझा हुआ है कि हमारे लिए किसी काबिल एतमाद नतीजे पर पहुंचना बहुत दुश्वार हो रहा है। मेरे बाज नजरियात से डॉक्टर विंचेस्टर को इख्तलाफ है और यही कैफियत मेरी है। बहरहाल आइए लाइब्रेरी में ही बैठते हैं, यहाँ की फजा मुझे पसंद आई है। जब हम अपने अपने सोफों पर इत्मीनान से बैठ चुके तब सर जेम्स ने पाइप नए सिरे से सुलगाते हुए मुझसे कहा, मैं समझता हूँ कि आप और डॉक्टर विंचेस्टर दोनों हजरात मिस ट्रेलानी के मुखलिस और हमदर्द दोस्तों में से हैं और डॉक्टर की तरह आपको भी इस केस के मुबादियात का अच्छी तरह इल्म है। इसलिए मेरी नाकिस राय में आपको भी हर मरहले पे हमारे साथ रहना होगा। ये हमारे लिए मदद और ताउन की बेहतरीन शक्ल होगी। आप यकीन कीजिए कि मैं आपके नाम से पहले से वाकिफ था। एक कानूनदान की हैसियत से आपकी शोहरत लंदन के इल्मी हलकों में फैल रही है और ये वाकया है कि मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, लेकिन क्या मालूम था कि ये मुलाकात ऐसे अजीब माहौल में होगी। बहरहाल मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। डॉक्टर ने जो हालात बताए हैं उनसे तो हर शख्स यही अंदाजा करने का हक बजानिब होगा कि ये नकब जनी या चोरी की वारदात है। हमला आवर जो कोई भी है, मर्द या औरत बाहर से नहीं आता बल्कि इसी मकान में कहीं मौजूद है। इन्हीं अफराद में से एक है जो गुज़िश्ता 3 दिनों और 3 रातों से यही मुकीम है। मैंने मिस्टर ट्रेलानी के जख्मों का भी मुआयना किया। बिलाशुबा वो किसी बिल्ली के खौफनाक पंजे ही हो सकते हैं और डॉक्टर विंचेस्टर का बयान है कि मिस ट्रेलानी की पालतू बिल्ली 2 मरतबा मिस्टर ट्रेलानी के कमरे में गई थी और एक बार उसने मिस्टर मैल्कम रॉस की कलाई पर भी पंजा मारा है। ब्लॉटिंग पेपर पर भी उस बिल्ली के पंजों के निशानात हैं, मगर उसके मुआयने से ये भी पता चलता है कि ये हरकतें उसी बिल्ली की हैं। मगर सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करती है। मैंने मिस्टर ट्रेलानी के कमरे में दूसरी मम्मियों के अलावा एक सियाह बिल्ली की मम्मी भी देखी है और मुझे बताया गया है कि इब्तिदा में आपकी पालतू बिल्ली ने उस सियाह बिल्ली पर हमला किया था। बाज जानवर एक दूसरे के वजूद बर्दाश्त नहीं करते। मुमकिन है आपकी पालतू बिल्ली को उस दूसरी बिल्ली का वजूद पसंद न आया हो, उसने उसी सबब उस पर हमला किया हो। वैसे भी मिस्टर ट्रेलानी के कमरे की फजा बड़ी बोझल है। वहाँ रात के सन्नाटे में और गहरी तारीकी में जानवर तो जानवर, किसी भी अच्छे भले आदमी का दिमाग खराब हो सकता है। अब रहा मिस्टर ट्रेलानी की मुसलसल बेहोशी का ताल्लुक, तो मेरी राय यह है कि उन्हें फौरन उस कमरे से हटाकर किसी हवादार, रोशन और साफ सुथरे कमरे में ले जाएं। डॉक्टर विंचेस्टर भी मेरी राय से मुत्तफिक है। इस कमरे की फजा में बहुत सी जहरीली गैसें और खुशबू आपस में मिल गई हैं, जो इंसान के आसाब और खुसूसन दिमाग के आसाब को सुला देने की कोशिश करती हैं। और ये उन्हीं का तासुर है कि आप लोगों को अंधेरे में सफेद सफेद साए हरकत करते नजर आते हैं। मुझे इल्म है कि मिस ट्रेलानी की आप अपने वालिद की हिदायत पर पूरी तरह अमल कर रही हैं। इन हिदायत में से एक ये भी है कि मिस्टर ट्रेलानी को हरगिज किसी हालत में भी उनके कमरे से बाहर न ले जाया जाए और न इस कमरे की कोई चीज वहाँ से कहीं और मुंतकिल की जाए। अगर ऐसा किया गया तो खुद मिस्टर ट्रेलानी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मैं नहीं समझता कि आखिर ऐसा करने में क्या हर्ज है। आप मिस्टर ट्रेलानी को मेरी जिम्मेदारी पर किसी और कमरे में मुंतकिल कर दें, फिर देखें वो कितनी जल्दी होश में आते हैं। क्या आपने नर्स कैनेडी की हालत से कोई सबक नहीं लिया? उसकी ये हालत दहशत और खौफ के बायस नहीं हुई, बल्कि खुद उसका बयान ये है कि कमरे में ऐसी खुशबू बसी हुई है जो बराह रास्त दिमाग पर असरअंदाज होती है और फिर जिस्म के आसाब को भी बेकार कर देती है। वो यकलख्त उठ खड़ा हुआ और चंद लम्हे खामोशी से पाइप पीने के बाद मिस ट्रेलानी से कहने लगा, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। अगर आप ये केस मेरे सुपुर्द करना चाहती हैं तो आपको अपने वालिद की दी हुई हिदायत पर अमल करने के बजाय मेरी बातों पर अमल करना पड़ेगा, वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप चाहें तो अपने दोस्तों से इस सिलसिले में मशवरा कर लें और डॉक्टर विंचेस्टर की मार्फत आज ही किसी वक्त अपने फैसले से आगाह कर दीजिएगा। और अब चलते वक्त मैं आपसे फिर अर्ज करता हूँ कि मिस्टर ट्रेलानी को यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल कर दीजिए। उसने सबसे हाथ मिलाया और चला गया। सर जेम्स के जाने के बाद देर तक कोई न बोला। सबके होठों पर जैसे मोहरे खामोशी लग गई थी। आखिर मैंने इस मोहर को तोड़ते हुए कहा, कहिए अब क्या इरादे हैं? डॉक्टर ने सर को जुम्बिश दी। इसका फैसला तो मिस ट्रेलानी करेंगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। सर जेम्स की राय कबूल करने या उसे रद्द करने का इख्तियार उन्हीं के पास है। मिस ट्रेलानी ने सर दाह भरी और भर्राई हुई आवाज में कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मेरा ख्याल यही है कि सर जेम्स का मशवरा कबूल कर लेना चाहिए। वो तजर्बेकार और अक्लमंद आदमी है। यकीनन जब वो पूरी जिम्मेदारी लेने को आमादा है तो हमें क्या तशवीश हो सकती है। डॉक्टर विंचेस्टर के मुरझाए हुए चेहरे पर रोशनी फैल गई। उसने खुश होकर कहा, मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि सर जेम्स की बात मान ली जाए। खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं। मैं अभी उनके पीछे पीछे जाता हूँ और कह देता हूँ कि सारा केस आपके हवाले है। जो दिल में आए कीजिए, हम हर तरह से आपका ताउन करेंगे, मगर इसमें एक कानूनी पहलू आप लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने कहा,
वो क्या? बराए करम जल्दी बताइए, मिस ट्रेलानी ने हैरत से पूछा। आपके वालिद के मुशीर कानून मिस्टर मार्विन शायद आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दें। मिस्टर ट्रेलानी ने आपको जो हिदायत दी हैं, उनकी एक नकल मिस्टर मार्विन के पास भी है। बेहतर यह है कि आप उन्हें तलब फरमाएं और बात करें। मिस ट्रेलानी ने इस तजवीज को सराहा और उसी वक्त एक रुक्का मिस्टर मार्विन के नाम लिखकर मुलाजिम के हाथ रवाना कर दिया। 1 घंटे बाद मुशीर कानून तशरीफ लाए। उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं आपकी परेशानी से खूब वाकिफ हूँ, उन्होंने मार्गरेट से कहा। अब बिला तकल्लुफ फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मिस्टर मार्विन, बराए करम मुझे मेरे वालिद के हालात जिंदगी से आगाह फरमाइए। आखिर ये किस्सा क्या है? मार्विन का मुंह हैरत से खुल गया। फिर उसने आंखों से मेरी जानिब देखा और कहने लगा, क्या हम अलहदगी में बात न करें? ओ, इस बारे में मुतलक फिक्र न करें मिस्टर मार्विन, मार्गरेट ने कहा। मिस्टर मैल्कम रॉस मेरे बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त हैं। उन्हें अब तक के तमाम हालात का बखूबी इल्म है और ये कदम कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं। आप खुलकर बात कीजिए। ये गुफ्तगू हमारे दरमियान ही रहेगी और बात बाहर नहीं जाएगी। बहुत बेहतर, अब मुझे इत्मीनान हो गया। मिस्टर मार्विन ने मुझे चुपती हुई नजरों से देखा और अपने चमड़े का एक भारी थैला खोलकर चंद कागज बरामद किए। नाक के ऊपर अपनी पुरानी ऐनक को जमा कर उसने इन कागजों में से एक कागज अलग किया। पहले उसे कई बार बगौर पढ़ा, फिर कहने लगा, मिस ट्रेलानी, मुझे इल्म नहीं कि आप क्या कार्रवाई करना चाहती हैं, ताहम आपके वालिद की हिदायत में एक बार फिर पढ़ देता हूँ। उनकी तामील बहरहाल आप पर फर्ज है, ख्वाह हालात कैसा ही रुख इख्तियार कर लें। पहली शर्त यह है कि जब तक मिस्टर ट्रेलानी के जिस्म में सांस की आमदोरफ्त जारी है, उन्हें उनके कमरे से हरगिज हरगिज ना हटाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उस कमरे की किसी शय को भी वहाँ से दूसरी जगह ना रखा जाए, ख्वाह वो शय कितनी ही हकीर मालूम होती हो। मेरे पास तमाम अशिया की फहरिस्त मौजूद है जो मिस्टर ट्रेलानी की ख्वाबगाह में रखी गई है। मिस्टर मार्विन, क्या आप मुझे वो फहरिस्त दिखाएंगे? मार्गरेट ने पूछा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकता, मार्विन ने साफ इनकार करते हुए कहा। मिस्टर ट्रेलानी की हिदायत के मुताबिक जब तक उनकी मौत वाकई ना हो जाए, मैं ये फहरिस्त किसी को भी दिखाने का मजाज नहीं हूँ। उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया, जिसका मफहूम मिस ट्रेलानी पर खूब वाज़ेह हो चुका था। वो चंद लम्हे खामोशी से मार्विन की तरफ देखती रही, फिर गर्दन झुकाकर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब तकदीर पर शाकिर हूँ। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर मार्विन ने उठकर हाथ मिलाया और चला गया। डॉक्टर वेंचेस्टर को फौरन ही मिस ट्रेलानी ने सर जेम्स के पास जाने से रोक दिया और कहा कि अब जो खुदा को मंजूर है होने दीजिए, मैं अपने वालिद की इतनी सख्त हिदायत की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी। उन्होंने आखिर कुछ सोच समझ कर ही ये हिदायत जारी की है। डॉक्टर वेंचेस्टर खामोश रहा। इतने में मिसेस ग्रांट अपना उदास चेहरा लिए नाजिल हो गईं। मिस ट्रेलानी ने सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा। सरकार, सब नौकरों ने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिए हैं, अब यहाँ कोई काम करने को आमादा नहीं है। आखिर बात क्या है? मैंने पूछा। वो कहते हैं कि मकान पर बदरूहों का साया है और उनकी जानों को खतरा है। वो तो अपनी तनख्वाह भी लेने को तैयार नहीं। मिस ट्रेलानी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन जब्त करके बावकार लहजे में कहा, जो नौकर नहीं रहना चाहते उसे फौरन 1 माह की तनख्वाह देकर रुखसत कर दो। मेरी तरफ से बखुशी इजाजत है कि जिसका जी चाहे यहाँ काम करे और जिसका जी चाहे वो जा सकता है। मिसेस ग्रांट ये हुक्म लेकर चली गईं। उनके जाते ही मिस ट्रेलानी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। नौकरों और खादमाओं को यूं रुखसत करने का फैसला मिसेस ग्रांट को पसंद न आया और मैंने भी दबी जबान से उस पर एहतजाज किया कि अगर लोग जाना ही चाहते हैं तो बड़े शौक से जाएं, मगर 1 माह की जायद तनख्वाह उन्हें किस खुशी में दी जा रही है। मेरे इस एतराज पर मार्गरेट ने मोहब्बत आमेज नजरों से मेरी जानिब देखा और कहा, मिस्टर रॉस, मैं आपके इस खुलूस की मुतारिफ हूँ जो मुझसे आपको है, मगर देखिए ना, ये बेचारे मुलाजिम भी बेकसूर हैं। उन्होंने इतने अरसे तक इस मकान के मकीनों की खिदमत की है और अगर वो जाना ही चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें हंसी खुशी और एहसान के साथ रुखसत किया जाए। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर हालात दुरुस्त हो जाएं और ये तमाम नौकर वापस काम पर आना चाहें तो मुझे कोई एतराज न होगा। अब मैं क्या बोल सकता था। उस लड़की की आला ज़र्फी पर दिल ही दिल में दाद देता रहा। फिर इस मौजू पर कोई बात न हुई। चंद लम्हे तक हम दोनों लाइब्रेरी में बैठे रहे। फिर वो मेज की एक तरफ गई और कागज पर न जाने क्या लिखती रही। गालिबन वो अपनी याददाश्तें दर्ज कर रही थी। मैंने भी मोटी सी किताब उठा ली और मुताले में गर्क हो गया। किताब इतनी दिलचस्प थी कि वक्त गुजरने का मुतलक एहसास न हुआ और ना ये पता चला कि मिस ट्रेलानी कब लाइब्रेरी से उठकर चली गई। यकायक लाइब्रेरी का दरवाजा आहिस्ता से खुला और सार्जेंट डाओ का सुता हुआ चेहरा नजर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, लीजिए, आप यहाँ धरे हुए हैं। मैंने एक एक कोना खुदरा आपकी तलाश में छान मारा। खैरियत तो है? आइए तशरीफ लाइए, मैंने जवाब दिया। जनाबे वाला, खैरियत होती तो आप मुझे यहाँ देखते, उसने हंसकर कहा। हम पुलिस वाले बड़े बदबख्त होते हैं, जाते ही वहाँ हैं जहाँ खैर आफियत बिल्कुल ना हो। बहरहाल मैं आपसे बहुत जरूरी बातें करने आया हूँ। बहुत खूब, फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। सार्जेंट ने पहले लाइब्रेरी रूम में चल फिर कर न जाने क्या कुछ देखा। अलमारी और पर्दों के पीछे झांकता रहा,
फिर दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में झांका और मुतमईन होकर दरवाजा बंद कर दिया। माफ कीजिएगा मिस्टर रॉस, ये एहतियाती तदाबीर हम पुलिस वालों की आदत बन चुकी है। वैसे भी आजकल के लोगों में ये बुरी आदत है कि छुप कर दूसरों की बातें सुनते हैं। बहरहाल इस वक्त कोई तीसरा यहाँ मौजूद नहीं जो हमारी गुफ्तगू सुन सके। गालिबन कोई राज की बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, मैंने कहा। बेशक यही मामला है, सार्जेंट ने कहा। इस मकान में ऐसे अनोखे और पुरस्कार वाकयात जन्म ले रहे हैं कि खुदा की पनाह अब हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। मगर इससे पेशतर कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, आप वादा करें कि इस बातचीत के मुतालिक एक लफ्ज भी बाहर न जाएगा। चूंकि इस मामले का ताल्लुक इस मकान की मालिका मिस मार्गरेट ट्रेलानी से है और मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त और हमदर्द हूँ, इसलिए ये वादा कर लेता हूँ, वरना मैं इस किस्म के वादे करने का आदी नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। बहरहाल मैं हर तरह से आपका शुक्रगुजार हूँ, उसने एक लहजा तामुल के बाद कहा। फिर चंद लम्हे छत को घूरने के बाद बोला, मिस्टर रॉस, आप जानते हैं कि मैं भी अपना फर्ज अदा करने के लिए यहाँ आया हूँ, और गालिबन ये बात आपके जहन में भी होगी कि हम स्कॉटलैंड यार्ड वाले जब तक अपना फर्ज पूरी तरह बजा न लाएं, हमें तस्कीन नहीं होती। और एक दयानतदार पुलिसमैन या सुराग रसा की हैसियत से मेरा यह फर्ज है कि किसी खौफ या घबराहट या गैर जानिबदारी के बगैर हकायक का पता लगाऊं और लोगों की परेशानियां दूर करूं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले मैं आपसे अलहदगी में बात कर लूं, उसके बाद आगे कदम बढ़ाऊंगा। सार्जेंट ने बात इतनी संजीदगी से कही कि नामालूम खौफ से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ताहम मैंने अपनी घबराहट पर पूरी तरह काबू पा लिया। मैं स्कॉटलैंड यार्ड की अच्छी कारकर्दगी का मुतारिफ हूँ और खुश हूँ कि आप इस मसले को हल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पूरे इत्मीनान से गुफ्तगू कीजिए, मुझे आप एक काबिल एतमाद साथी पाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सार्जेंट ने गर्दन झुकाकर कहा। मैं उम्मीद रखूं कि इस गुफ्तगू का कोई जिक्र आप न मिस ट्रेलानी से करेंगे और न उनके वालिद मिस्टर ट्रेलानी से, बशर्ते कि वो होश में आ जाए। मैं वादा करता हूं कि किसी से कुछ न कहूंगा, मैंने कहा। सार्जेंट ने खनकार कर गला साफ किया। 2-3 मरतबा चेहरे से पसीना पहुंचा। साफ जाहिर था कि वो खुद भी बेहद मुस्तरब और परेशान है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि गुफ्तगू कैसे और कहां से शुरू की जाए। इस दौरान में मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिर उसने रुक रुक कर कहा, मिस्टर रॉस, मैं इस बात की माफी चाहता हूँ कि इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मैं शायद अपने असल फराइज से कुछ परे हट जाऊं। मैं दिल से आपकी कदर करता हूँ और आप पर मुझे पूरा एतमाद है और मुझे यकीन है कि मामले को सुलझाने में आप मेरा पूरा ताउन करेंगे। किस्सा यह है कि इस मकान में गुज़िश्ता 3 रोज से जो वाकयात पेश आ रहे हैं, मैंने उनका बड़े गौर से मुताला और मुशाहिदा किया है। हत्ता कि मेरे दिमाग की रगें फूल गईं और रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा पैदा हो गया और मुझे ये तस्लीम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैंने अपने आप को एक तिफले मकतब से भी कम अकल पाया है। मिस्टर ट्रेलानी पर 3 बार रात की तारीकी में किसी ने हमला किया, मगर सवाल यह है कि हमला आवर है कौन, वो मकान में किधर से आता है और किधर जाता है। हालांकि हमारी तहकीक के मुताबिक इस मकान से न कोई बाहर गया न कोई अंदर आया। आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि हमला आवर पहले से मकान में मौजूद रहा है। मुमकिन है वो अब भी मौजूद हो। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। सार्जेंट ने गहरा सांस लेते हुए यूं कहा जैसे सर से भारी बोझ उतर गया। मगर जनाब, सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो शख्स है कौन और मकान में कहाँ छुपा हुआ है? वो शख्स या वो शय, मैंने आहिस्ता से कहा। सार्जेंट हैरत से मुझे घूरने लगा। मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है। कोई बदरू, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ, बदरू, सार्जेंट ने मुंह बनाकर कहा। मुमकिन है आपका ख्याल दुरुस्त हो, मगर मुसीबत यह है कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले बदरूहों के वजूद को तस्लीम नहीं करते।